Assalamualaikum students. Today we are going to study science of class 8. So let's start. So here it is unit number 3 biotechnology on page number 19. So let's read it. Unit 3 biotechnology. We have learnt in chapter 2 of this book about the DNA, deoxyribonucleic acid. The DNA of all living organisms has the same structure. Some of its genes control all the characteristics of the body. These genes of interest can be cut from one organism and inserted into another cell of organism. In this way, it is possible to develop new characteristics in organism. Using this technique, scientists have been able to develop cattle which give more milk and have more meat. Plants can grow more fruit with better nutritional value. Incurable diseases can be cured. All this has become possible because of great advance in the field of biotechnology. जैसे कि हमने इस ही बुक के चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था डीएनए के बारे में कि कैसे डीएनए हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को, हमारी चीज़ों को डिवाइड करता है और जीन्स हमारे बॉडी को कंट्रोल करते हैं। ऐसे ही जो जीन्स होते हैं वो एक ऑर्गेनिज्म के दूसरे ऑर्गेनिज्म में कट होकर हम अगर ट्रांसफ़र करें तो वो एक न्यू चीज़ बन जाती है। इसमें हमारा ऐसा हो सकता है कि उस ऑर्गेनिज़म में बहुत सारे न्यू चेंजेस आ जाएंगे, जैसे कि इस टेक्निक को यूज़ करके बहुत सारे जानवर जो हैं वो बनाए हैं साइंटिस्ट ने, जिससे ज़्यादा दूध और ज़्यादा हमारा उसमें गोश्त आ जाएगा। पौधे जो हैं वो ज़्यादा फ्रूट ग्रो करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एडवांसमेंट हुई है इस टेक्नोलॉजी के उसमें। Biotechnology is the branch of science that deals with the use of animal cells or microorganisms for scientific and industrial process. Biotechnology helps to meet human needs. It is also being used in medicines and agriculture to produce better varieties of drugs, क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स। बायोटेक्नोलॉजी साइंस की ऐसी ब्रांच है जो एनिमल्स के सेल्स और उनके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मतलब प्रोड्यूस करती है, उसको स्टडी करती है। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो इंसान की ज़रूरतों को पूरा करने में हेल्प करती है। ये जो है मेडिसिन्स में और एग्रीकल्चर में यूज़ होती है ताकि अच्छे से मतलब नए किस्म के दवाइयाँ और फसल या सब्जियां उगाई जाएं। We know that characteristics of living organisms are determined by genes that are present on chromosomes. Scientists bring changes in genes of a microorganism to produce desirable characteristics by inserting genes of interest. Biotechnology is both an ancient art and a modern science. We can see its application in different fields of our life. जैसे कि हम जानते हैं कि जानदार चीज़ों की जो भी हमारे खसूसियात होती हैं वो जीन्स के हिसाब से होती हैं, जो हमारे क्रोमोसोम्स में मौजूद होती हैं। साइंटिस्ट ने जीन्स को हमारे चेंज कर दिया है, उसमें दूसरे जीन्स में लाकर। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो एक पुराना आर्ट और हमारा नया मॉडर्न साइंस जिसे हम कहते हैं वो भी है। हम बायोटेक्नोलॉजी को डिफरेंट फील्ड्स में देखते हैं। Biotechnology as an ancient art. The word biotechnology is modern, but people have been using biotechnology to produce some of their staple foods since ancient times. Artificial selection or selective breeding is also a kind of biotechnology. People identify good characteristics in plants and animals, then they cross them to produce new organisms with better qualities. Artificial selection is a slow process. A good example of artificial selection is broilers and layers hen. The layer hen lays more egg than common hens. The broiler chicken grows very fast and gives us more meat to fulfill our protein needs. अब हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी वर्ड है वो तो मॉडर्न है, पर लोग पहले के ज़माने में भी इसे यूज़ करते थे ताकि अच्छे से खाना बन सके, अच्छे से क्रॉप्स बन सकें। अब जैसे कि ब्रीडिंग हो गई, जैसे हमारी मुर्गियां होती हैं उनमें हम कुछ चेंजेस करके उन्हें फीड करवा के उनके जो है बड़ी मोटी करते हैं ताकि वो अंडे ज़्यादा दे सकें या खाना ज़्यादा दे सकें या गोश्त जो है वो अच्छे से हो। टर्न द पेज स्टूडेंट्स।
Biotechnology as a modern science. We know that selective breeding is a slow process. We have to patience for the result. Scientists have developed another technique which is much more rapid. This technique is called genetic engineering. Genetic engineering is the changes of genes to produce new varieties of plants and animals. Genetic engineering is very helpful for farmers to produce high yield crops and their varieties that are resistant to harmful insects and diseases. It also helps to improve human health. अब जैसे कि हम जानते हैं कि ब्रीडिंग जो है वो स्लो प्रोसेस है, उसमें हमें बहुत सब्र रखना होता है। तो साइंटिस्ट ने एक न्यू तरीका ईजाद किया है जो बहुत ही जल्दी हो जाता है। इसको हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो जीन्स का चेंजिंग है जो हमारे मतलब प्लांट्स और एनिमल्स में चेंजेस लाता है, उसमें न्यू वैरायटीज़ आता है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है फार्मर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है क्योंकि उनकी जो खेती होती है उसमें ज़्यादा वैरायटीज़ आ जाती हैं और इंसेक्ट्स और डिजीज़ से भी वो मतलब महफूज होती हैं और इंसान की हेल्थ के लिए भी वो फ़ायदेमंद हैं। हाउ DNA is copied and made. We know that every organism is made up of one or more cells. Cells do not live forever. Cells must divide to produce new cells. When a cell divides to make two new cells, it's a set of DNA is also copied to make a new set of DNA molecules. The process in which DNA molecules from exact copies is called DNA replication. Before discussing that how DNA is copied or replicated, we must study the structure of DNA. अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो एक से या एक से ज़्यादा सेल से बने हुए होते हैं। अब सेल्स तो हमेशा ज़िंदा रहते नहीं हैं, तो सेल्स को डिवाइड होना होता है ताकि वो न्यू सेल्स बन सकें। जब हम एक सेल डिवाइड होता है दो न्यू सेल्स बनाने के लिए तो उसका DNA जो है वो भी कॉपी होता है और DNA के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं DNA रेप्लिकेशन। अब पहले जब हम DNA को डिस्कस करें कि वो कैसे कॉपी और रेप्लिकेट होता है, उससे पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं DNA का। स्ट्रक्चर ऑफ DNA. Rosalind Franklin was the first to discover the DNA molecule was a strand of molecules. The DNA strands and chromosomes are tightly collated. अब रोज़लैंड फ्रैंकलिन जो था वो पहला ऐसा साइंटिस्ट था जिसने ये DNA के मॉलिक्यूल्स को फाइंड किया कि वो आपस में कैसे जुड़े हुए होते हैं। कम ऑन नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स। In 1953, James Watson and Francis Crick described the structure of DNA. The DNA molecules looks like a twisted ladder. Long strands of the ladder are made up of two different substances, sugar and phosphate, which are connected to one another. 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने DNA का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था। उन्होंने बताया था कि ये एक मरोड़ी हुई सीढ़ी की तरह होती हैं। ऐसी सीढ़ी जो दो मुख्तलिफ सब्सटेंस से बनी हुई हो, शुगर और फॉस्फेट, जो एक दूसरे से कनेक्टेड हों। इसके अंदर लॉन्ग स्ट्रेड्स होते हैं जो डिफरेंट किस्म के मटेरियल से बने हुए होते हैं। द पीसेस दैट होल्ड द टू साइड्स ऑफ DNA ladder together are called rungs. There are millions of rungs in one DNA molecules. These rungs are made up of 4 nitrogen bases. These nitrogen bases are known as adenine, thymine, cytosine and glutamine. Each rung is made of 2 bases. A joins with T and G with C. The order of nitrogen bases in a DNA molecule is the code which contains information. The DNA of a chromosome is divided into sections called genes. अब हमारे जो पीसेस होते हैं जो DNA के लेटर्स को आपस में जोड़े रखते हैं, हम उसे रंग्स कहते हैं। एक DNA मॉलिक्यूल में बहुत सारे रंग्स होते हैं। ये रंग्स जो हैं वो 4 नाइट्रोजन बेसिस से बने हुए होते हैं जिनका नाम है एडेनाइन, थायमाइन, साइटोसाइन और ग्लूटामाइन। अब हर जो रंग है वो 2 बेसिस से ज्वाइन होता है। ए जो है वो T से ज्वाइन हुआ होता है और G जो है वो C से। अब जो हमारा इनका मेथड होता है आपस में ज्वाइनिंग होने का, वो एक कोड होता है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है हमारे DNA के बारे में। और हमारा जो DNA है वो क्रोमोसोम्स को हिस्सों में डिवाइड करता है जिसे हम जीन्स कहते हैं।
How is DNA copied? During copying, the DNA ladder separates or unzips free-floating bases within the cell's nucleus, pair with the separated bases as a new DNA strand. In this way, two identical DNA strands are formed. अब कॉपी करने के दौरान जो DNA की लेडर्स होते हैं वो या तो अलग हो जाती हैं या फिर अनजिप हो जाती हैं, फिर वो फ्लोट होकर आपस में दूसरे सेल्स के न्यूक्लियस में जाकर कनेक्ट हो जाती हैं, फिर एक नया DNA स्ट्रैंड बनता है। इसी तरीके से जो DNA स्ट्रैंड्स होते हैं वो बनते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन DNA, जीन्स एंड क्रोमोसोम्स। Chromosomes are present in the nucleus of most cells. Chromosomes are made up of DNA, deoxyribonucleic acid, and protein. Genes are short sections of DNA. Genes contain all the information an organisms need to stay alive. When a DNA molecule copied, genes present on it are also copied. Genes control all the characteristics we received from our parents, e.g. the color of our eye, the color of our hair and our height. अब जो क्रोमोसोम्स हमारे न्यूक्लियस में या सेल्स में मौजूद होता है वो हमारा DNA से बना हुआ होता है और प्रोटीन से बना हुआ होता है। अब जो जीन्स होते हैं वो उसके DNA के सेक्शंस होते हैं। DNA में सारी इंफॉर्मेशन होती है जो एक ऑर्गेनिज़म को ज़िंदा रहने के लिए चाहिए होती है। जब DNA मॉलिक्यूल कॉपी होता है तो उसमें जो जीन्स होते हैं वो भी कॉपी होते हैं और वो सारे हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, जैसे कि आँखों का कलर, बालों का कलर, हमारी हाइट वगैरह। टर्न द पेज स्टूडेंट्स। Define bacterium. In previous classes we have learned that a bacterium is a very simple unicellular microorganism. Bacteria lack a nucleus. A bacterium has a chromosome known as bacterial chromosome and a plasmid extra DNA ring in it. The plasmid carries extra information that is also passed on to next generations. Bacteria grow rapidly by mitotic division. Some types of bacteria can reproduce after every 20 minutes. Scientists use different types of bacteria in genetic engineering. अब जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि हमारा बैक्टीरिया जो है वो एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जिसका एक न्यूक्लियस नहीं होता। अब बैक्टीरिया के पास एक क्रोमोसोम्स होता है जिसे हम बैक्टीरियल क्रोमोसोम या फिर प्लाज्मिड कहते हैं। और जो प्लाज्मिड होता है उसमें इंफॉर्मेशन होती है जो हमारे दूसरे जनरेशन्स में जाती है। बैक्टीरिया जो है वो जल्दी से ग्रो हो जाता है क्योंकि उसमें माइटोटिक डिविजन्स होता है। कुछ बैक्टीरिया के किस्म होते हैं जो हर 20 मिनट के बाद रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। साइंटिस्ट जो हैं डिफरेंट किस्म के बैक्टीरिया जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं। Introduction of genome to bacterium. Scientists use special techniques to remove the plasmid DNA ring from a bacterium and cut it open. Then they remove a short piece of DNA or a gene from another organism such as human responsible for making human protein and ties it to the cut ends of the bacterial DNA. The bacterial DNA forms a ring again. Finally, the DNA ring is inserted back into the bacterial cell. The bacterium produces offspring very quickly. All of its offspring start making human protein under the direction of inserted human gene. साइंटिस्ट के पास ऐसी स्पेशल टेक्निक्स होती हैं जिससे वो अपना प्लाज्मिड बैक्टीरिया का रिमूव करती हैं और उसे खोलती हैं। फिर वो एक छोटा सा DNA का पीस जो है वो काट कर ह्यूमन का डाल देती हैं उसमें। फिर जैसे ही उसका एंड्स कट कर देती हैं फिर वो वापस से रिंग बनना स्टार्ट हो जाती है और उसके जो फिर जैसे ही उसको बंद कर देते हैं वैसे ही वो अपने बच्चे दोबारा बनाना शुरू कर देता है और उसके बच्चे जो हैं वो ह्यूमन प्रोटीन्स के अंडर डायरेक्शन वो ह्यूमन जीन्स बनाते हैं। कम ऑन नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स। Genetic modifications. Genetic modification is the use of modern biotechnological technique to change the genes in an organism. Using this technique, scientists add or remove a desired characteristic of an organism. Genetic modification is carried out through genetic engineering. Genetically modified organisms are used to produce large quantities of medicines and to improve crop
production and quality etc. Genetic modification includes removing genes from one organism and inserting them into another. For example, insects resistant genetically modified cotton contain a gene from a bacterium. It protects the cotton plant from insects. The use of insect resistant cotton can reduce the use of insecticides in Pakistan. जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऐसा मॉडर्न तरीका है बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करने का जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के कोई भी कैरेक्टरिस्टिक रिमूव कर सकते हैं या उसमें कोई सा भी ऐड कर सकते हैं। उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग से बना हुआ है। इसमें जो है हमारे लिए बहुत सारे मेडिसिन्स की क्वांटिटीज़ बन जाती हैं, हमारे मतलब किसी भी और उनके फसल के बहुत सारी क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ाने के लिए हेल्प आती है। इसमें हमारे एक जो ऑर्गेनिज़म होता है उसके जीन्स हटाकर हम दूसरे के भी डाल सकते हैं। जैसे कि इंसेक्ट होता है उसमें हम कोई सी भी उसके जीन्स हटाकर हम उसमें दूसरे डाल सकते हैं। फिर ये जो है हमारा इंसेक्ट्स मतलब कॉटन प्लांट हमारा बचने में बच जाता है। इसमें हमारे इंसेक्ट रेजिस्टेंस होता है, वो हमारे किसी भी फसल को कीड़े को खाने नहीं देता। Omega-3 oils are considered healthy oils. Omega-3 oils reduce the risk of heart problems, diabetes and asthma. It is obtained from fish. Scientists have made omega-3 oil in a plant by introducing genes into it. Many foods can now be enriched with omega-3 oils. ओमेगा-3 ऑयल्स जो हैं वो बहुत ही हेल्दी ऑयल्स में आता है। ओमेगा-3 जो है वो हार्ट अटैक, डायबिटीज़ और भी बहुत सारी बीमारियों को कम करने में हेल्प करता है। ये फ़िश से निकाला जाता है। साइंटिस्ट ने अब इनके जीन्स चेंज करके दूसरे भी हमारे बहुत सारी चीज़ों में ओमेगा-3 पाया जाता है। Glowfish is the first commercially available genetically modified pet. This fish glows all the time. This fish has been developed by inserting a gene from jellyfish into a zebrafish. अब जो ग्लोफिश है ये भी कमर्शियली अवेलेबल है, हम इसे एज अ पेट पाल सकते हैं। ये हर वक्त जो है ग्लो करती रहती है। इसका जो है जीन्स एक्सचेंज हुआ है जेलीफिश का उठाकर ज़ेब्रा फिश में डाले जाने से इसका ऐसा ग्लोफिश बन गई है। ऐसे ही हमारा ये है genetic modification have produced tomatoes that have increased level of certain nutrients such as vitamin C, etc. These tomatoes help us protect against some cancers and heart diseases. अब जैसे कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन की वजह से हमारे टोमेटोज़ में बहुत सारी चीज़ें न्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन सी वगैरह बढ़ गई हैं। यह हमें किसी भी कैंसर या कोई भी बीमारी से हमें बचाने में हेल्प करता है। General applications of biotechnology. Biotechnology is making our lives better. It is a vast field. It applies in health, agriculture, food production, preservation and saving environment. अब बायोटेक्नोलॉजी जो है वो हमारी ज़िंदगियाँ बेहतर बनाती है। ये बहुत बड़ी फील्ड है। ये हम इसमें हमारी हेल्थ, एग्रीकल्चर, फूड वगैरह, फूड प्रोडक्शन और बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ। सम इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ आर, कुछ जो हैं ज़रूरी चीज़ें जो हमारी हेल्थ में हुई हैं बायोटेक्नोलॉजी की वजह से वो यहाँ पर दी गई हैं। टर्न द पेज स्टूडेंट्स। Human insulin. Insulin is a hormone which controls the level of sugar in the blood. The rise of blood sugar causes a disorder called diabetes. A patient of diabetes needs injection of insulin on daily basis. The insulin used in the past came from slaughtered cattle. It was expensive and in limited supply. A few years ago, human insulin was produced by genetically engineered bacteria. Genetically engineered insulin is cheaper and available in large quantities. अब इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है। ये अगर
हमारी ब्लड लेवल जब बढ़ जाती है तो हमें डायबिटीज़ हो जाती है, और जो डायबिटीज़ का पेशेंट होता है उसे इंसुलिन डेली बेसिस पर चाहिए होती है। पहले में ये एक कैटल में पाई जाती थी, बहुत ही एक्सपेंसिव, और इसकी तादाद बहुत लिमिटेड थी। पर कुछ साल पहले साइंटिस्ट ने कुछ बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिकली हेल्प लेकर इसका जो है ह्यूमन इंसुलिन बना ली, जो सस्ती भी है और बहुत ज़्यादा तादाद में हमें मिल सकती है। Vaccines. A vaccine is any preparation that is used to produce immunity against a specific disease. Vaccines against tubercular causes, TB, measles, diphtheria, hepatitis, etc. are being used. Vaccines are made from diseases causing germs. These germs are made weakened or dead when these are introduced into a person's body. A vaccine helps body to produce immunity. This immunity protects a person from that disease. Making vaccines for certain diseases is such expensive, such as hepatitis B. Now scientists use genetic engineering to produce vaccine for various diseases that are less expensive. अब एक वैक्सीन जो है वो किसी भी मतलब एक बीमारी का हल होता है जो हमारे कुछ इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मिलती हैं। वैक्सीन जैसे कि टीबी, मीज़ल्स, डिप्थीरिया और भी बहुत सारी बीमारियों के अगेंस्ट यूज़ की जाती हैं। वैक्सीन्स जो हैं तब बनाई जाती हैं जब वो जर्म्स पैदा करती हैं, और वो जर्म्स जो हैं इस वैक्सीन से कमज़ोर हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं। जब ये इंसान के बॉडी पर आ जाती हैं तो हमारी जो है वो हम बेहतर होते जाते हैं। अब जो हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग जो वैक्सीन्स बनाती है मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए, वो बहुत कम महंगी नहीं होती इतनी ज़्यादा। Number 1, human growth hormones are produced by using techniques of genetic engineering. These hormones help to promote growth of human body. अब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के मदद से बने गए हैं। ये हमारे बॉडी को बढ़ने में हेल्प करते हैं। Gene therapy is a technique in which a diseased gene is replaced by a healthy gene in an organism to treat a disease. It is one of the most important use of biotechnology. Gene therapy can be used to treat diseases such as AIDS and cancer. अब जो जीन थेरेपी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कोई भी हमारी डिजीज़ का जीन जो है वो हेल्दी जीन में बदला जाता है और बीमारी को सॉल्व किया जाता है, उसका इलाज किया जाता है। ये बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही अहम इस्तेमाल है हमारे बायोटेक्नोलॉजी का। अब हमारी जो जीन थेरेपी है वो कुछ ऐसी ख़ास डिजीज़ होती हैं जैसे एड्स हो गया, कैंसर हो गया, उनको ट्रीट करने में हमारी हेल्प करता है। Biotechnology in agriculture. World's population is growing rapidly. It is not easy to grow food for everyone on the earth. Biotechnology has helped to increase crop productivity by introducing such qualities as disease resistance and increased drought tolerance to the crop. Now scientists have selected genes for disease resistance from other organisms and transferred them to important crops. अब जैसे कि हमारी आबादी बहुत बढ़ती जा रही है तो हमारे जैसे आम हम नहीं उगा सकते हर किसी के लिए खाना, इस वजह से हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। वो क्रॉप के जो हैं वो बीमारियां भी बचाता है और उसमें ग्रोथ भी ज़्यादा करता है। Increased crop productivity. Scientists have introduced a virus gene to create resistance in papaya. अब साइंटिस्ट ने एक रेजिस्टेंस मतलब एक हल वायरस का निकाला है जिसे वायरस जीन कहते हैं, जो अब पपाया में बीमारियां जो हैं फैलने से रोक रहा है। क्रॉप सच एज कॉर्न, कॉटन एंड पोटैटो हैज़ बीन सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म्ड थ्रू जेनेटिक मॉडिफिकेशन टू मेक अ प्रोटीन दैट किल्स सर्टेन इंसेक्ट्स विच दे फीड ऑन द प्लांट्स। अब जैसे कि कुछ फसलें जैसे कि गन्ने की हो गई या फिर मकई की, कपास की या आलू की, उनमें मतलब जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो गई है, उन्हें मतलब किसी भी बीमारी से पाक कर दिया गया है। कम ऑन नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स। Improved nutritional value. Genetic modification have also helped to improve the nutritional value and flavor of food. Genetically modified crops such as soybean with higher
protein contents, potato with more nutritional stretch, and beans with more essential protein, and golden rice with the ability to produce beta carotene and vitamin A. Golden rice can help to prevent blindness in Pakistan in people who have nutritional deficient diets. Biotechnology also helps to preserve foods. For example, fruit and vegetables are preserved in the form of pickles and jams to increase their shelf life. अब हमारे जो है जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो है उसने न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी और खाने के जायकों को भी बढ़ाया है। जैसे कि क्रॉप्स कुछ बढ़ाई हैं, जैसे सोयाबीन हो गई, उसमें ज़्यादा प्रोटीन है, पोटैटोज़ में ज़्यादा न्यूट्रिशन है, बीन्स में ज़्यादा प्रोटीन्स हैं, गोल्डन राइस में हमारी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी मतलब ब्लाइंडनेस को भी हमारी ठीक कर सकता है। जिनके डाइट में मतलब कमी है किसी भी चीज़ की उसे पूरा करता है। बायोटेक्नोलॉजी ने मतलब कुछ ऐसी चीज़ें भी ईजाद की हैं जिससे हमारा खाना जल्दी ख़राब नहीं होता। बायोटेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू यूज़ बायोटेक्नोलॉजी टू सिक्योर एनवायरनमेंट। साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से वो माहौल को भी जो है ठीक करें। साइंटिस्ट हैव developed biodegradable plastic. Unlike other plastic, this plastic can be broken down into simpler substance by bacteria and fungi. अब साइंटिस्ट ने बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाई है, दूसरी प्लास्टिक की तरह नहीं है। ये प्लास्टिक आसानी से छोटे छोटे टुकड़ों में होकर ये गायब भी हो सकती है बैक्टीरिया और फंजाई की मदद से। साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू डेवलप फास्ट ग्रोइंग ट्रीज। दीज ट्रीज विल हेल्प कंट्रोल एनवायरमेंटल पोल्यूशन। साइंटिस्ट जो हैं वो दरख्तों को जल्दी उगाने का तरीका भी ढूंढ रहे हैं जिसकी वजह से हमारी पॉल्यूशन ज़्यादा नहीं फैलेगी। पेस्टिसाइड्स आर केमिकल कंपाउंड्स दैट आर यूज्ड टू किल पेस्ट, इंसेक्ट्स, etc. ऑफ क्रॉप्स. फार्मर्स हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू बाय पेस्टिसाइड्स. Biotechnology has given a solution to this problem. Some bacteria and fungi are being used to destroy pests. अब पेस्टिसाइड्स जो हैं एक ऐसी केमिकल्स हैं जो हमारे इंसेक्ट्स वगैरह जो हमारे फसलों में आकर बैठ जाते हैं उनको ख़त्म करने में मदद करती है। इसकी वजह से जो है हमारे जो किसान होते हैं उन्हें बहुत सारे पैसे यूज़ करने पड़ते थे पहले से ख़रीदने के लिए, पर अब कुछ जो है इंसेक्ट्स साइंटिस्ट ने ऐसे बनाए हैं जिनकी हेल्प से वो ख़त्म हो जाएंगे जो हमारे पेस्ट वगैरह हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यूज और माइक्रोऑर्गेनिज्म टू ब्रेक डाउन कम्प्लेक्स पोल्यूएंट्स इनटू सिंपल सब्सटेंस। जैसे कि पानी होता है उसमें प्लांट्स को ट्रीट करने का या फिर उनको ठीक करने का माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के थ्रू भी ऐसा रास्ता निकाला गया है। यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी, साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड डिटर्जेंट एंजाइम्स विच रिमूव प्रोटीन, स्ट्रेच एंड फैटी एसिड्स प्रेजेंट ऑन आइटम बीइंग वॉश्ड। अब बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए डिटर्जेंट में कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने डाल दी हैं जो किसी भी किस्म के फैटी एसिड या स्ट्रेच वगैरह जो भी चीज़ हम धो रहे हैं उस पर मौजूद होगी वो ख़त्म हो जाएगी। Using biotechnology, carbon can also be converted into biofuel. The biofuel can be used to run generators to produce electricity. अब कुछ बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए जो हमारा कचरा होता है वो भी बायोफ्यूल में कन्वर्ट हो सकता है। बायोफ्यूल जो है वो जनरेटर्स को चलाने में हेल्प करता है। So that's all about its reading. We will send you its exercise and pictures. Thank you for watching.